مزید تاخیر کیے بغیر آج کی ایک بہت اہم تقریر کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہولسٹک یوٹیلائزیشن آف زکوٰۃ، اس تقریر کو پیش کریں گے جناب عبدالرقیب صاحب۔ ان کا کچھ تعارف میں آپ کے سامنے کر دوں۔ جناب عبدالرقیب صاحب جنرل سیکریٹری انڈین سینٹر فار اسلامک فنانس ہیں۔ انڈین سینٹر فار اسلامک فنانس اس کے بانی مشہور اکنامسٹ، اسلامک اکانومسٹ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب ہیں۔ اس سینٹر کی ذمہ داری یہ عبدالرقیب صاحب سنبھال رہے ہیں۔ جناب عبدالرقیب صاحب سمارسم تمل فورٹ نائٹلی جو نیوز پیپر ہے اس کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ And Janab Abdul Raqib Sahab has been promoting the concept of Islamic banking, interest-free banking for a long time now. He has met finance minister, former finance minister, former RBI governor, and former chairman of Planning Commission in order to propagate and put forward the concept of Islamic banking and adoption of Islamic banking. ہولسٹک یوٹیلائزیشن آف زکوٰۃ اس عنوان کے تحت میں جناب عبدالرقیب صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمیں وہ انلائٹن کریں۔ جزاک اللہ۔ کانفرنس کا جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہمارے آج کے معزز مہمان جو پہلی مرتبہ شرکت کر رہے ہیں ڈاکٹر سید ظفر احمود صاحب، اور آپ کے ساتھ فادر ہنری مارٹن انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کے ہمارے پرانے ساتھی دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ کانفرنس جو لوگ کل سے شامل ہیں ان کو اس کے بارے میں علم ہے کہ یہ کانفرنس کا کیا پس منظر ہے، لیکن جو لوگ آج شامل ہوئے ہیں ان کے لیے مختصراً یہ بتانا چاہوں گا کہ آل انڈیا ایجوکیشن موومنٹ، ہمارے ڈاکٹر قدیر صاحب جس کے ایک بہت ہی اہم رکن و ممبر ہیں، نے 4 سپٹمبر کو جے پور میں ایک ایجوکیشن کانفرنس کی تھی۔ ڈاکٹر ظفر احمود صاحب نے بھی اس کو خطاب کیا تھا آن لائن، اور اس کانفرنس کے موقع پہ جہاں بہت سارے ہم لوگوں نے فیصلے کیے تھے، ضرورتیں محسوس کری تھیں مائنورٹیز کے ایجوکیشن کے تعلق سے، اور ان لوگوں کے ایجوکیشن تعلق سے جس کو ہم ایجوکیشنلی بیکورڈ کمیونٹی کہتے ہیں، اور جس میں خاص طور سے ہماری کمیونٹی مسلم کمیونٹی آتی ہے، جہاں ہم لوگوں نے اور چیزوں پہ غور و فکر کیا، جیسے ٹیچرز ٹریننگ کی ضرورت محسوس کری، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اہمیت کو زیادہ سمجھا گیا۔ اسی طریقے سے یہ سوچا گیا کہ کیونکہ سرکار کے جو اخراجات ہیں وہ شرنک ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، سرکار کی کوئی پالیسی ہو یا وجوہات ہوں یا ریونیو کی کمی ہو یا کوئی بھی وجہ ہو، وہ ایسے سیکٹرز میں سے اپنے آپ کو وڈرا کر رہی ہے جس میں تعلیم بھی شامل ہے، اور پرائیویٹ یونیورسٹیز، پرائیویٹ کالجز، فورن یونیورسٹیز کا ہندوستان میں خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ تو اب ہر شخص کو، ہر کمیونٹی کو، ہر گروپ کو اپنی تعلیم کی خود فکر کرنی ہوگی، اور اس طرح وہ نہ صرف اپنی تعلیم کی فکر کریں گے بلکہ جو نیشنل ایفرٹس ہیں تعلیم کی اس میں بھی شامل ہو جائیں گے۔ نئے ایجوکیشن پالیسی کے تحت جو بھی نیشنل ایفرٹس ہیں اس کی تفصیل میں اس وقت یہاں نہیں جاؤں گا، اس میں بھی ہم شامل ہو جائیں گے نئے ہندوستان کو بنانے میں۔ تو یہ جب غور کیا گیا تو وسائل کے ایک اہم مدعا سامنے آیا، اور مسلم کمیونٹی کے تعلق سے یہ محسوس کیا گیا کہ 2 3 4 ایسے ہمارے پاس وسائل ہیں، اس میں زکوٰۃ ہے اور اوقاف ہیں، جس کا اگر اچھا استعمال کیا جائے، اس کو جس طریقے سے اس میں جو مذہبی اس میں اس کی سینکشنز ہیں، اس کے پیچھے مذہبی، اس کے پیچھے جو ہمارے ریلیجیس سینکشنز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی سماجی استعمال کی طرف ہم اگر اس کو استعمال کریں تو ہو سکتا ہے اس کے ہمارے بہت سارے جو وسائل کی کمی ہمارے سامنے آتی ہے وہ دور ہو سکتی ہے۔ ظفر احمود صاحب زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک طویل عرصے سے کام کر رہے ہیں،
اور لوگ بھی یہاں کل آئے تھے جو اوقاف کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں. تو اب جب یہ سامنے آتے ہیں مدعے اور بات ہو رہی ہے کل سے, تو یہ لگتا ہے کہ یہ نہ صرف مسلم کمیونٹی کے لیے ایک اہم سورس اور ریسورس ہو سکتا ہے, بلکہ نیشنل ایفرٹس ان امپلائمنٹ کو دور کرنے کے لیے, لٹریسی کو پھیلانے کے لیے, الٹریسی کو دور کرنے کے لیے, یا اور بھی کوئی ہماری جو نیشنل ایفرٹس ہیں اپنے سوشل ایکولیٹی لانے کے لیے, یہ سارے وسائل اس کو استعمال کیا سکتا ہے. اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اپنا کر کے, سیلف ہیلپ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, اسمال مائکرو فائنینسنگ کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ایک وسیع میدان سامنے آتا ہے جب ہم لوگ اس پہ چرچا کرتے ہیں. تو اسی پس منظر میں یہ 2 دن سے کانفرنس ڈاکٹر ظفر محمود صاحب اس کا انعقاد یہاں کیا گیا ہے, اور ہمارے تمام سامعین جو یہاں موجود ہیں, خواتین حضرات, انہوں نے بڑے مفید مشورے بھی دیے ہیں, بڑے تجربے ہو رہے ہیں ملک میں جگہ جگہ. اب آج ہم آپ لوگوں سے مستفید ہوں گے. میں صرف اس لیے کہ آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتاؤں, میں نے یہ وقت سما خراشی کی, میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور رقیب صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا, جو شاہین انسٹیٹیوٹ کے روا ہیں, ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے وقت دیا کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہو کر چند باتیں اسلامک فائنانس کے تعلق سے اور زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں کر سکوں. میری یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ اس اسٹیج پر خواجہ شاہد صاحب موجود ہیں, اور ہمارے مربی اور بہت سینئر ہمارے بیکورڈ ہمارے ڈاکٹر محمود صاحب, ظفر محمود صاحب بھی ہیں, اور ان کے ساتھ جو آئے ہیں فادر سامیول, جو مجھے خوشی ہے کہ وہ میرے اسٹیٹ سے, تمل ناڈو سے تعلق رکھتے ہیں اور تمل زبان کے حامی ہیں. تو میں ان سب کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. دوستوں اور بزرگوں, اور میں اس خواہش کا بھی, اس خوشی کا بھی اظہار کرتا ہوں خاص طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو, کہ یہاں بڑی تعداد میں ہماری بیٹیاں اور لڑکیاں بیٹھی ہیں, اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ملت کے لیے کہ ان کو آگے بڑھایا جائے. آپ تو پیچھے صف میں ہیں, لیکن میں جو امید کرتا ہوں کہ حضرت ختیجہ کی طرح جو ام المومنین تھیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ حضرت ختیجہ ان کے ساتھ نہ دیتی تھی. اور مجھے امید ہے کہ وہ صف اول پر بھی چند دنوں کے بعد آئیں گی, اور شاہین انسٹیٹیوٹ جو ہے ان کے لیے ایک ہرا دستہ ہوگا. میں سب سے پہلے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی تعمیر میں یہ جو وشو گرو بنا ہے یہ ملک ہمارا, اس میں ہمارے ایک بڑے مسلم قائد کا بڑا ہاتھ ہے جسے ہم نے بھلا دیا ہے. مولانا ڈاکٹر ابوالکلام آزاد ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر اعلیٰ تھے, وزیر تعلیم تھے. انہوں نے ایک ویژن تھا اس ملک میں تعلیم کو عام کرنے کا, اور انہوں نے IIT بنائی اور UGC بنائی اور مختلف کام کیے, اور اس کو حکومت نے تسلیم بھی کیا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اسی زمانے میں مولانا آزاد نے مسلمانوں کے سامنے بھی چند باتیں رکھی. آج انہوں نے 100 سال پہلے یہ بات کہی. میں 4 اقتباسات ان کی ایک کتاب ہے حقیقت زکوٰۃ سے پیش کرنا چاہوں گا. مولانا آزاد کہتے ہیں, میں پورے 30 برس کے غور و فکر کے بعد, جس کی کوئی صبح اور شام ایسے نہیں گزری کہ میں نے پوری توجہ اور پوری دل سوزی کے ساتھ غور و فکر نہ کیا ہو, اس نتیجے پر پہنچا ہو کہ مسلمانوں کی اجتماعی فلاح و صلاح بجز اس کے کسی دوسرے معاملات پر موقوف نہیں ہے جو قرآن کے ہر صفحے پر لکھا ہوا تم دیکھو گے. اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ, قیام نماز اور ادائیگی زکوٰۃ, یہی 2 مسائل ایسے ہیں جن کو تم نے سب سے زیادہ غفلت کے حوالے کر دیا. قرآن کریم نے اس مسئلے پر سب سے زیادہ زور دیا, سب سے زیادہ تاکید کی, مگر آج انہی 2 مسائل کو تم نے سب سے زیادہ پش پش ڈال دیا. پھر دوسری جگہ وہ کہتے ہیں لوگ فردن زکوٰۃ اپنے طور پر ادا کرتے ہیں. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ درست نہیں ہے, اور آج میں ایک قدم آگے بڑھ کر منبر رسول پر کھڑے ہو کر پوری ذمہ داری کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ صرف یہی نہیں کہ زکوٰۃ جو انفرادی طور پر ادا کی گئی ہے درست نہیں ہے, بلکہ صحیح اور اصح یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ہی نہیں ہے, کوئی دوسرا نام دیا جا سکتا ہے.
ज़कात का नाम नहीं दिया जा सकता। फिर उन्होंने कहा लोगों से जो बैठे हुए थे उस मिंबर रसूल से अपना खुतबा सुनते हुए, उठो और हर कस्बे और हर मोहल्ले में कम से कम 5 आदमियों की जमात बना लो, 6 भी नहीं, सिर्फ 5 जो ज़कात की तहसील वो तंजीम करे और पूरी जिम्मेदारी और बाकायदे के साथ सर्व करे। फिर आखिर में उन्होंने कहा जो बहुत ही मानेखेज है, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान और कुछ ना करें, मुसलमान अगर और कुछ ना करें, सिर्फ ज़कात का मामला ही अहकाम कुरानी के मुताबिक दुरुस्त कर लें, तो बगैर किसी तामुल के दावा किया जा सकता है कि उनकी तमाम इज्तिमाई मुश्किलात और मसाइब का खुद ब खुद हल पैदा हो जाएगा। लेकिन मुसीबत यह है कि मुसलमानों ने या तो अहकाम कुरानी की तामील एक कलम तर्क कर दी है या फिर अमल भी कर रहे हैं, तो उस तरह के फिल हकीकत अमल ही नहीं कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा यहाँ जो लोग आए हुए हैं, इस किताब को जो हकीकत ज़कात के नाम से मौलाना आज़ाद ने 100 साल पहले कही है, तो उसको हम दोबारा पढ़ें, फिर हम देखें कि हुकूमत ने तो उनकी बातें मान ली और फिर तालीम में भी तब्दीली की, टेक्निकल एजुकेशन में भी आगे बढ़ा। आज आईआईटी के लोग जो दुनिया के सारे इदारों में काम करते हैं मल्टीनेशनल में, लेकिन मुसलमानों ने उनकी इस बात को नजरअंदाज कर दिया और आज जो हालत है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की जो जिम्मेदार हैं हम बैठे हुए डॉक्टर ताहिर महमूद साहब, हमारे जफर महमूद साहब, वो बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। दोस्तों, बुजुर्गों, माँ और बेटियों, इस्लाम की बुनियाद जो है 5 चीज़ों पर है। इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, कलमे शहादत, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। बुनियाद किसे कहते हैं? फाउंडेशन क्या है? डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब इंजीनियर, सिविल इंजीनियर हैं, मालूम है कि बुनियाद अगर सही ना हो तो पूरी इमारत खड़ी नहीं हो सकती, बुनियाद कमजोर हो। और लेकिन हमारे दीन की बुनियाद में ज़कात नहीं है। आप हमारे समाज में जाके पूछे, जिम्मेदारों से पूछे, हमारे औरतों से पूछे, उलमा से भी पूछे कि लोग नमाज में फर्ज भी जानते हैं, सुन्नत भी जानते हैं, नफिल भी जानते हैं, वो रोजे के बारे में भी जानते हैं, हज के बारे में, उम्र के बारे में तो क्या पूछना, लेकिन ज़कात के बारे में कोई नॉलेज नहीं है ज्यादा। हमारे दोस्त अभी आमिर साहब नहीं आए हैं, इदरीसी साहब, उन्होंने 5 साल पहले एक सर्वे किया था 5000 लोगों का हिंदुस्तान में। मालूम है कि 30% लोगों को, मुसलमानों को नहीं मालूम है कि ज़कात है क्या, व्हाट इज ज़कात, दे डोंट नो। 40% को मालूम नहीं है कि हम कैलकुलेट कैसे करें, निसाब क्या है। आज के जमाने साहिब निसाब कौन होता है मालूम ही नहीं 40% मुसलमानों। और 60% ये कहते हैं कि हम उन्हीं लोगों को ज़कात देते हैं, हर साल हम देते आते हैं। और देते भी क्या है? चंद किलो चावल, चंद गज कपड़े और कुछ चीजें देते हैं और समझते हैं कि हमने ज़कात अदा कर दिया। ये बहुत बड़ी हमारे पास लैकिंग है ज़कात के बारे में। मैं ये कहता हूं कि बुनियादी हमारी सही नहीं है ज़कात के बगैर। ये सीमेंट है जो बुनियाद को खड़ी करती है, अगर सिर्फ बुनियाद सही नहीं है तो इमारत कैसे खड़ी होगी। आज जो रोना हम रो रहे हैं कि हमारी मिल्लत ऐसी है, 30% बिलो पॉवर्टी लाइन क्यों है? इसलिए कि हमने खुदा के अहकामात को, अहकाम खुदाबंदी को अदा किया, नमाज पढ़ रहे हैं, कलिमा पढ़ रहे हैं, हज और उम्रा कर रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, लेकिन ज़कात जो इंसानों का हक है, हुक्कुल इबाद है, उसकी तरफ हम नजरअंदाज करते हैं। हमने कभी जो है हमारे लोगों ने, मैं अपने दिल पर हाथ रख के कहता, आप अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए, हजरत उमर जो है खलीफे वक्त हैं, आधी दुनिया के हुक्मरान हैं, लेकिन रात की तन्हाइयों में जाते हैं कि गरीब क्या कर रहा है, कौन जो है बाहर खड़ा हुआ है, उसके घर में जो है तकलीफ तो नहीं है, दर्द जी में तो है। क्या हम, मैं और आप अपने दिल पर हाथ रख, मैं अपने दिल पर हाथ रख के कहता हूं कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया, कभी गया ही नहीं गरीबों की, जो भी झोपड़े हैं हमारे शहरों में, लेकिन हम कभी जाते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, चाहे वो हिंदू है मुसलमान, गरीब कश्मकश में जिंदगी गुजारने वालों के बारे में हम को करते ही नहीं है। और फिर हम कुरान की आयतों को, आज हमारे परवेज साहब नहीं है, मैं उनसे कहना चाहता था कि सूरह तौबा जो है सूरह तो ज़कात है, 6 आयतें हैं सूरह तौबा में, और उसमें सारी तफसीलात अल्लाह ताला ने बयान कर दी हैं। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदका, अल्लाह के रसूल को हुक्म है कि तुम ज़कात हासिल करो इंसानों से जो है जो मालदार हैं, और फिर उसकी तथहीर भी करो। और फिर दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तू खिज़ु मिन अगनियाहिम व तुरद्दु इला फुक़राहिम, मालदारों से हासिल करो और गरीबों तक पहुंचाओ। लेकिन और हम दौर नबवी में देखते हैं कि उसका सिस्टम क्या था।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک سسٹمیٹک تھا. عاملین صدقات بھی تھے اور پھر کاتبین صدقات بھی تھے, عاملین ہما بھی تھے اور خارسین بھی تھے. عاملین جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے, جانتے تھے وہ لوگ کون تھے؟ صحابہ اکرام میں حضرت عمر, حضرت عمر بن عاص, حضرت عبد الرحمن بن عوف, اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح. کوئی جو ہے خلیفہ وقت ہوا, کوئی کمانڈر ان چیف ہوا, کوئی گورنر ہوا. آج ہم زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کس کو بھیجتے ہیں؟ جو معمولی لوگ ہوتے ہیں, چپراسی ہوتے ہیں, معمولی مدارس میں جو لوئر کلاس کے علماء ہوتے ہیں ان کو بھیجتے ہیں. حضرت اللہ کے رسول نے جو ہے سب سے بہترین کریم آف دا سوسائٹی کو بھیجا کہ زکوٰۃ وصول کریں. کاتبین صدقات کے بارے میں بھی یہی حال ہے. خارسین ایسٹیمیٹ کرتے تھے اللہ کے رسول کہ کتنا اناج ہے, کتنا کھجور ہے. ایک خیبر کے علاقے میں جب اللہ کے رسول گئے تو خود بتاتے ہیں, تاریخ دان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو اسٹیمیٹ لگایا وہ وہی تھا. تو اس کا مطلب تھا کہ اللہ کے رسول پہ فیلڈ پہ کام کرتے تھے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے. کیا میں اور آپ جو ہے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے فیلڈ میں ہے؟ یہ سوال ہمارے پاس ہے. اور پھر کسے دینا ہے؟ زکوٰۃ کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے غریبوں کو دینا ہے. زیادہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں دینا ہے. قرآن کہتا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم, اور پھر وفی الرقاب والغارمین وابن السبیل وسبیل اللہ. 8 مدات پر جو ہے خط ہونا ہے, اور مسلمانوں میں یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ 8 مدات کیا ہیں. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اس لیے کہ جو ہے وقت نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آڈینس میں اور خاص طور پر ہماری بیٹیاں اور بہنیں اور مائیں اور نوجوان لوگ جو ہے زکوٰۃ کے مدات کے 8 مدات کیا ہیں اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں وہ بہت مشہور حدیث آپ کو معلوم کہ بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا, تو حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف جہاد کیا. حالانکہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے, کلمہ بھی پڑھتے. پھر حضرت عمر جو ہے ہمارے اس تاریخ اسلام کے وہ درخشاں ستارے ہیں, جس کے بارے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ عمر فاروق کی تاریخ شبلی نعمانی کی کتاب سے ضرور پڑھیں. اس کا دوسرا حصہ جو ہے انہوں نے ایڈمنسٹریشن کی ہے, جو حالات کو جب بدلنے کی کوشش کی ہے, وہ ہماری تاریخ اسلامی کا وہ شاندار چیپٹر ہے جو ہم کو دیکھنا ہے, بار بار دیکھنا ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ لینے والے نہیں تھے, وہ گلیوں میں آواز لگاتے تھے کوئی ہے زکوٰۃ لینے کے لیے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شیئرنگ اینڈ کیئرنگ سوسائٹی تھی امت مسلمہ کی, وہ تاریخ کا سنہری دور تھا. آج اس ملک میں ہمیں اس قسم کے کیئرنگ اینڈ شیئرنگ سوسائٹی کو ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ 30% بلو پاورٹی لائن ڈپرائوڈ سوسائٹی نہیں, بلکہ ایک شاندار سوسائٹی کو ہمیں رکھنا چاہیے. اور پھر اب اس کے لیے ہم کیا کریں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حالت ہے, اور ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں. کل ہمارے فرنگی بہلی صاحب نے مولانا نے کہا کہ بات کہی کہ کیسے جو ہے 700 سال کے بعد بغداد کا جو سقوط ہوا اس کے بعد تاتاریوں نے قبضہ کر لیا, تو انفرادی زکوٰۃ کی طرف لوگ آ گئے اور پھر اجتماعی زکوٰۃ ختم ہوا. لیکن آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو میں نے سروے بتایا آپ کو کہ 30% people don't know what zakat is, 40% know how to calculate it. What is the situation this one? تو ہم چاہتے ہیں کہ عوامی بیداری کریں اور پھر ہم سروے کریں ہر مقام پر کتنے لوگ غریب ہیں, کتنے لوگ جو ہے معذور ہیں, کتنے لوگ جو ہے بلا شادی شدہ کے لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھر پر. یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے سروے ہم کریں گے. پھر ایسے لوگوں کو لگائیں گے زکوٰۃ کے لیے جو صلاحیت بھی رکھتے ہو, صالحیت بھی, پائٹی بھی ہو, پروفیشنلزم بھی ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے متقی ہوتے ہیں لیکن پروفیشنلزم نہیں ہوتا, اور پھر بعض پروفیشنلز ہوتے ہیں لیکن تقویٰ دور دور تک ان کے پاس نہیں ہوتا. جو تقویٰ بھی ہو اور پھر پروفیشنلزم بھی ہو, پائٹی اور پروفیشنلزم کے ساتھ ہو. اور پھر دوسری بات جو میں یہاں بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, زکوٰۃ کون دے گا؟ جس کے پاس مال ہو. اور امت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 300 سال سے امت جو ہے کریشن آف ویلتھ میں پیسہ پیدا کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. ہمارے گرو اور ہمارے مربی ہمارے نجات اللہ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی نے کہا کہ 3 صدیوں سے مسلمانوں نے تکوین دولت کریشن ویلتھ کی طرف توجہ نہیں دی. کوئی تحریک ہو, کوئی جماعت ہو, کوئی مذہبی جماعت ہو, کسی نے کہا کہ تم اٹھو اور پھر جو ہے کاروبار کرو اور پھر جو ہے یا تو نئے نئے صلاحیتیں پیدا کرو اور دولت پیدا کرو.
दौलत अगर आप पास नहीं होगा तो आप ज़कात कैसे देंगे, हज कैसे करेंगे, लोगों की खिदमत करें। क्रिएशन ऑफ वेल्थ शुड बी दी मोटो ऑफ आवर थिंग, कि हमको हमारी तहजीब में, हमारी मिल्लत में जो है एक नया उनसर पैदा होना चाहिए कि हम जो हलाल और तैयब रिस्क की तरफ तलाश करें और क्रिएशन ऑफ की तरफ जाएं। और एक दूसरी बात जो मैं आपसे सामने अर्ज करना चाहता हूँ, ज़कात को अगर हम सही तरीके से लागू करना चाहते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी, माल के बारे में हमारा तस्वुर क्या होना चाहिए, माल को कैसे क्रिएट करना चाहिए, अर्न कैसे करना चाहिए, कैसे सेव करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर कैसे खर्च करना चाहिए, कैसे दूसरों को देना चाहिए। ये दुनिया के सारे कौमें करते हैं, पैदा भी करते हैं और फिर उसे सेव भी करते हैं। लेकिन हमारा हाल क्या है, अगर हम देखेंगे अपनी जिंदगियों में, हम पैसा कमाते भी तो सही तरीके से नहीं कमाते, और फिर जो खर्च करते हैं, हमारी शादियां, हमारे ब्याह, ये मुशरिकाना भी है और मुसरिफाना भी। ये मुशरिकाना है कि जो उम्मत मुस्लिमा की सादा और सुन्नत के मुताबिक हम शादी करेंगे तो बचत भी होगी और इन्वेस्ट भी करेंगे। इन्वेस्टमेंट का ये सरकार सरमायाकारी का तस्वुर हमारे पास नहीं है। कल मैं हमारे पास बुजुर्गों को भी बता रहा था, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो आज आलम इस्लाम के सबसे बड़े फकीह भी हैं और जस्टिस भी हैं, वो कहते हैं कि कुरैश का हर कबीला एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होता था। इसका मतलब ये था कि कुरैश की खवातीन जो बड़ी भी थी छोटी भी थी, 1 दिनार 2 दिनार वो जो कारवान जाते थे शाम की तरफ और यमन की तरफ, उसमें इन्वेस्ट करते थे कि भाई मेरे पास 1 दिरहम है, मैं अपने पैसे लगाता हूँ, 2 दिरहम है, मैं इसमें इन्वेस्ट करती हूँ। उस जमाने में 2500 5000 जो ऊंट का काफिला जाता था, वापस आता था यमन से और शाम से, वो इंतजार में रहते कि मेरे 2 दिनार 4 दिनार तो नहीं हुए। तो ये तस्वुर जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का आज भी दुनिया में बड़ी बड़ी जो कारोबार होते हैं, चाहे टाटा का हो, बिरला का हो, विप्रो का हो, सब जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी में होते हैं। क्या हमको मालूम है कि आज के हिंदुस्तान में कितनी जॉइंट स्टॉक कंपनी है और उसमें कौन से शरिया कंप्लाइंट जो है स्टॉक्स है। मुसलमानों के लिए जो है बहुत सारे स्टॉक्स हमारे दोस्तों ने बनाया, टाटा फंड है, एथिकल फंड है, उसमें मुसलमानों से ज्यादा जैन कम्युनिटी जो है इसमें इन्वेस्ट करती है। पैसा कमाओ, पैसा अगर हलाल तरीके से नहीं कमाएंगे तो ना आप खिदमत कर सकते हैं, ना अपने आप पर जो है खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं, ना ज़कात दे सकते हैं। ये मुझे कहना था। तीसरी बात जो मुझे आज करनी है वो ये, फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ जो है हम जो है मस्जिद को मरकज बनाएं। मैंने एक ये भी लिखा है, मस्जिद को खिदमत खल्क का मरकज बनाएं। अब देखेंगे कि मस्जिद जो है हमारे सेंटर होती है, न्यूक्लियस होती है। एक बहुत बड़े जर्मन आथर ने लिखा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशन बनाए, एक मस्जिद एक मार्केट, और दोनों को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हम देखेंगे कि मिल्लत इस्लामिया में वो बाहर आएगी, वो खुशहाली आएगी और वो तवानाई आएगी, और वो जो है मिल्लत में, मुल्क में जो है एक बाइज़्ज़त जिंदगी गुजार सकते हैं। और फिर फाइनेंशियल लिटरेसी वो तो मैंने बोल दिया, और फिर फिनटेक, आज का जमाना डिजिटल का जमाना है और हम देखते हैं कि क्राउड फंडिंग है, ब्लॉकचेन है, इसके जरिए से हमको दरमियानी आदमी नहीं होता, आप डायरेक्ट जो है जो मोहताज है, जो ये होता है जिसके लिए पैसे आप देख भी सकते हो, जूम में देख भी सकते हैं, उससे बात भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी को, फिनटेक को हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है। और फिर ये बात भी हमें देखने की जरूरत है कि हिंदुस्तान में तो माशाल्लाह जफर महबूब साहब बरसों से काम कर रहे हैं, लेकिन मुल्कीर सतह पर ये पूरे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी क्या हो रही है। सच्ची बात है कि ज़कात के जरिए से हमने ट्रांसफर नहीं किया, उसके लिए सिस्टमैटिक कोशिशें हमने मुल्क भर में नहीं की। छोटे मोटे काम अब भी हो रहे हैं कि अल्लाह में वैसे ज़कात कर रहे हैं, ज़कात फाउंडेशन कर रही है, हमारे एएम के लोग जो इदरीसी कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा पैमाने पर होना चाहिए। जैसे नमाजों के लिए मस्जिदें हैं, ऐसे ही बैतुल माल जो है ज़कात के लिए भी हर इलाके में होने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर कल भी बात आई थी कि मलेशिया है, इंडोनेशिया है, साउथ अफ्रीका है, यहाँ के ज़कात के सेंटरों पर जब हम गौर करते हैं तो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। खास तौर पर गरीबों को जो उन्होंने जो तकसीम किया है, प्रोडक्टिव पुअर और नॉन प्रोडक्टिव पुअर, गैर पैदावारी गरीब और गैर पैदावारी गरीब, जो अपाहज होते हैं, दाइमुल मरीज होते हैं, जो कुछ नहीं कर सकते, वो अनप्रोडक्टिव हैं, उनको जो है हमेशा 25% जो है वो देते हैं मुस्तकिल। लेकिन जो प्रोडक्टिव पुअर हैं, जो नौजवान है, उसके पास स्किल है, कोई लड़की है जो पढ़ सकती है, कोई ज़राअत का आदमी है, उसको ट्रैक्टर दिया जाए, उसको बल्क रकम दी जाती है ज़कात के जरिए से, और चंद दिनों के बाद जो
ज़कात देने वाले हैं वो ज़कात लेने वाले हैं, वो ज़कात देने वाले बनते हैं, मुस्तहक जो है मुज़क्की बनते हैं। इस तरीके से सोसाइटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से मैं आपको बारे में बताऊंगा कि साउथ अफ्रीका जहाँ मुसलमान 2% है, डॉक्टर साहब 2% है, लेकिन इकोनॉमी में 10% जो है उनका हिस्सेदारी है, और वहाँ 40 साल से जो है ज़कात साउथ अफ्रीकन नेशनल एसोसिएशन ऑफ ज़कात क़याम संजफ है। आपको जानकर हैरत होगी, इसको चलाने वाली 2 खवातीन हैं और उनका नाम है फरोजा मोहम्मद और नसरीना फ्यूडिक बोल के। और वो औरतें ऐसी हैं कि हाईली टेक्निकल लोग हैं, वो KPMG में काम करती थी और उन्होंने ऐसा काम किया है कि दुनिया उसको तस्लीम करती है। उनको जो है ग्लोबल गुड गवर्नेंस का जो अवार्ड जो है पूरी दुनिया ने दिया है कि इससे बेहतर जो है 2% मुसलमान हैं और 10% कंट्रीब्यूट करते हैं और खवातीन जो इसको चलाती हैं। क्या हमारे लिए नमूना नहीं है इस हिंदुस्तान में? तो हमारे पास जो है ऐसे नमूने होने चाहिए, देखना चाहिए, वहाँ के खवातीन को भी बुला सकते हैं। बांग्लादेश में मैंने देखा एक आदमी है अयूब मियाँ, देखने में तो मामूली मालूम होता है, पढ़े लिखे भी नहीं मालूम होते। जब मैंने उनसे पूछा कि अयूब मियाँ आप क्या हैं, उन्होंने कहा कि मैं सेक्रेटरी था इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश में। और फिर जब मैंने आगे बढ़ के पूछा, उन्होंने मैं टैक्सेशन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन था। और उनके हाथ में जो है हम देखते हैं कि ज़कात का एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस किस्म के सक्सेस स्टोरी को जो है हम देखने की कोशिश करें। सबसे आखिर में मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि दुनिया ने देखा कि गरीब गरीबतर होते जा रहे हैं, अमीर अमीरतर होते जा रहे हैं, तो उन्होंने जो है पायदार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो है 17 अहदाफ उन्होंने तैयार किए सस्टेनेबल। इसमें यह है कि गुर्बत का खात्मा हो और फिर जो है भूख का खात्मा हो, सेहत अच्छी हो और तालीम का मेयार भी अच्छा हो। तो इस किस्म के काम के लिए उन्होंने जो है किया कि 17 अहदाफ मुकर्रर के 220 मुस्लिम ममालिक ने मिल के कहा कि हम जो है गरीबी का खात्मा करेंगे और कुर्राए अर्ज़ की हिफाजत करेंगे, एंड ऑफ द पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लैनेट और आलमी खुशहाली प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम 3 अहदाफ पर हम काम करेंगे। एक ये है कि हम सरमायाकारी पर और खासतौर पर सोशल फाइनेंस पर हम काम करेंगे, दूसरा जो टेक्नोलॉजी में काम करेंगे और फिर जो है तिजारत पे हम फोकस करेंगे। ये 3 चीज़ों पर जो है हम तिजारत पर फोकस करेंगे और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो है एक नई दुनिया कायम हो रही है। लेकिन इसके लिए रेस्पॉन्ड क्या किया है, तो इसके लिए मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि इंडोनेशिया के लोगों ने ये लिखा है, द रोल ऑफ द ज़कात in supporting the sustainable development goal, role of the zakat in sustainable development goal। उन्होंने कहा कि ये जो गोल है सस्टेनेबल गोल, तरक्की के जो पायदार अहदाफ है, ये है जो है हमारे मकासद शरिया। इमाम गजाली और इमाम शातिबी ने कहा कि हमारे जो हदफ हैं मकासद शरिया के, इन मकासद शरिया के हुसूल के लिए 17 अहदाफ जो है इसमें काम आ सकते हैं। एक दूसरा डॉक्यूमेंट भी उन्होंने बनाया, अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ ज़कात इन अदर फॉर्म्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस। वो कहते हैं कि जो अहदाफ बनाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, इस गुर्बत को खत्म करने और फिर बेरोजगारी को खत्म करने, सेहत के लिए लाने के लिए, और माहौलियात में जो कसाफत आई है दुनिया में, जो माहौलियात में जो क्लाइमेट में जो चेंज हुआ है, इन सब को जो 17 अहदाफ हैं उसके ये करने के लिए हमारा पोटेंशियल जो है ज़कात भी है और इस्लामिक फाइनेंस भी। हम कंट्रीब्यूट करेंगे। दुनिया के मुसलमानों ने कहा, मलेशिया के, इंडोनेशिया के, सऊदी अरब के और टर्की के लोगों उलमा ने, वहाँ के पैसे वालों ने मिनिस्टर से मिलकर कहा, यूनाइटेड नेशन से कहा, हम इसमें हिस्सेदारी है। तो क्या इस मुल्क में हम जो है इसी किस्म का काम नहीं कर सकते? मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जफर महमूद साहब और शाहिद साहब, हमारे अब्दुल कदीर साहब जो जिम्मेदार बैठे हैं, हम लीड लें कि इस मुल्क की गुर्बत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिस्से में ज़कात के जरिए से भी, इस्लामिक फाइनेंस के जरिए भी हम जो है पूरे मुल्क के गरीबों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा की इस ख्वाब के जो है सरमद को ताबीर करेंगे और मुल्क को जो है गुर्बत से, बेकारी से, उनके हाउस होल्ड इसके लिए, और फिर जो इसमें जो अहदाफ हैं कि अमन के लिए और जिंदगी के लिए, आब हवा के लिए, ये सारे 17 अहदाफ हैं। और इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम सरमायाकारी, फाइनेंस के लिए सोशल सरमाया लगाएंगे और फिर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और फिर तिजारत को जो है हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको जानकर हैरत होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ताजिर थे। हजरत खदीजा एक कामयाब ताजिरा थी।
50% बिजनेस कुरैश के वो करती थी, और मदीने के मार्केट को अल्लाह के रसूल ने कायम किया और फरमाया अल जालिबु इला सुखिना कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, और यहूदियों के इस कब्जे को और फिर उनके जो मुनाफली को अल्लाह के रसूल ने खातिमा किया और एक इंसाफ पसंद बाजार कायम किया। और हर दोपहर को अल्लाह के रसूल जो है मार्केट जाते थे, निगरानी करते थे। और इसीलिए कुरान कहता है ये कैसा रसूल है, याकुलून ताम व यमशून फिल अस्फाक, ये खाना भी खाता है, बाजारों में घूमता है। आज हम देखेंगे लोग कहते हैं सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे खराब जगह मार्केट है, लेकिन अल्लाह के रसूल की सुन्नत थी कि वो मार्केट भी जाया करते थे। आज जरूरत इस बात की है कि हम जो है मस्जिद को भी आबाद न करें बल्कि मार्केट में भी जाएं, तिजारत भी करें और लोगों से हमारा लेन देन भी हो और जिंदगी के मसाइल में हम आगे बढ़े, खुद भी तवाना और तंदुरुस्त बने और लोगों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये मेरा पैगाम है। और आखिर में मैं आपके सामने एक हमारे जलील क़दर आलिम दीन और जो ये थे मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात करके जब अपनी बात खत्म करूंगा। आप जानते हैं कि 100 साल से हमारे तबलीगी जमात के भाई गली गली फिरते हैं, कोचे कोचे फिरते हैं और लोगों की टुड्डियां पकड़ते हैं और कहते हैं कि मस्जिदों को आबाद करो। मेरा बचपन का जमाना मुझे याद है कि रमजान के जमाने में भी बूढ़े आते थे 5-10 मस्जिदों में, लेकिन और हमारे जो हाफिज साहब होते थे वो सहारनपुर से आते थे, सरहद से आते थे। लेकिन अल्लाह का फजल है कि आप तबलीग जमात के बारे में आपको सही ये हो ना हो, लेकिन जो काम किया है मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने हमारे सामने है कि उन्होंने मस्जिदों को आबाद किया, नमाज को आबाद कर दिया। वक्त आ गया है कि मैं अपील करूंगा कि हम ज़कात के बारे में भी इसी तरीके से मुहिम चलाएं। नमाज और ज़कात अगर साथ हो जाए, अगर हम उठें और हम देखेंगे कि चंद सालों में ज़कात के लिए बैतुल माल कायम होगा, मस्जिदों के साथ साथ मस्जिद में ज़कात के सेंटर भी कायम होंगे, वहाँ गरीब भी आएंगे, मालदार भी आएंगे और एक नया माशरा हम कायम करेंगे, एक केयरिंग और शेयरिंग सोसाइटी हम काम करेंगे। इसके लिए हमारे माएँ भी काम करेंगी, बच्चा भी काम करेंगे, नौजवान भी काम करेंगे, उलमा भी काम करेंगे, कॉमन मैन भी काम करेंगे और इसमें हिस्सेदारी जो है मुसलमानों का भी होगा और गैर मुस्लिमों का। अब मुझे अभी पढ़ रहा था मौलाना आज़ाद की किताब को भी और डॉक्टर हमीदुल्लाह की किताब जो खुतबा बहावलपुर है, उन्होंने कहा कि ज़कात को जो है गैर मुस्लिमों को भी दी जा सकती है। हमारा उमूमन ये है कि सिर्फ मुसलमानों, मेरे पास तफसील मौजूद है लेकिन वक्त नहीं है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हम देखें अगर इस मुल्क में हमने 5-10% भी गैर मुस्लिमों को साथ दिया, एक प्लूरल सोसाइटी में एक हम आहंगी पैदा होने या गैर सगाली का जज्बा पैदा होने में क्या कुछ हो सकता है। हम इस मुसलमानों को जो है, इस सोसाइटी को हम कुछ दे नहीं रहे। यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है किसी कम्युनिटी का। डॉक्टर साहब, ये आप पूछे कि ईसाई क्या करते हैं, हमारे रवेश साहब वो हॉस्पिटल चलाते हैं, वो जो है तालीमी इदारे चलाते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। सिखों के बारे में कल भी बात आई कि उनका 24 घंटे जो उनका लंगर खुला। मुसलमानों का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, क्या है जो मुसलमान बेच सकते हैं इस मुल्क में, उनकी शनाख्त क्या है? उसकी शनाख्त ये थी कि वो ज़कात का अमल करते थे, लोगों को देने वाले थे। अगर हम देने वाले ना हो तो उसकी इज्जत क्या होती है। तो इसलिए इस मुल्क में अगर हम बावकार जिंदगी गुजारना चाहते हैं, सिर्फ नमाज रोज़ा और हज के जरिए से और सिर्फ उम्रे पर उम्रा करने से, हमारी बेशुमार मुसरिफाना शादियों के जरिए से हम कोई पैगाम नहीं दे सकते। मुझे उम्मीद है कि यहाँ जो जिम्मेदार बैठे हैं अब्दुल खदीर साहब, शाहिद साहब और हमारे जफर महमूद साहब लीड लेंगे और यहाँ लोगों को बताएंगे कि ज़कात को हमें जिद्दा ज़कात की तरह जो नबी में था, जो हज़रत उमर के ज़माने में था, जो 700 साल तक ज़कात का निज़ाम था और आज के ज़माने में भी मलेशिया में, जनूबी अफ्रीका में, बांग्लादेश में हो रहा है, इस मुल्क में भी हम कायम करके रखेंगे। अल्लाह से दुआ भी करेंगे, एक जुनूनी हैसियत से जो मौलाना इलियास ने किया था हम भी आगे बढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमारा नासिर भी होगा। और जाहिर है कि नमाज के लिए जो तरीका इख्तियार किया था तबलीगी जमात ने, ज़कात के लिए वो तरीका नहीं होगा, टोटली डिफरेंट होगा। इसमें पैसे कमाने होंगे और फिर उसका ज़कात के लिए डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट रोड मैप होगा। ये रोड मैप हमको बनाना पड़ेगा और दुनिया से सीख कर भी उसमें सारे लोग होंगे, लड़कियां भी होंगी, नौजवान भी होंगे और मुसलमान भी होंगे, गैर मुस्लिम भी उसमें शरीक हो सकते हैं। मुझे याद आता है कि हजरत उमर ने देखा कि अकाउंट लिखने वाला जो है शाम में ये एक आदमी है जो रोमन ऑरिजिन का था। डॉक्टर हमीदुल्लाह ने लिखा है कि हजरत उमर ने गवर्नर ऑफ मिस्र को लिखा कि वो आदमी अकाउंट्स में बहुत अच्छा है, उसको भेजो मदीना, मैं उससे इंस्पायर होना चाहता हूँ, उससे ख्याल करना चाहता हूँ। आज के ज़माने में भी हमें इस किस्म के काम करने चाहिए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला
مجھے بھی اور آپ تمام احباب کو بھی نیک انداز سے اس ملک میں جو جمہوری ملک ہے، ایک سیکولر ملک ہے، پلورل ملک ہے، وہاں ہم اٹھیں اور ہمارے معاشرے کو ایک خوشحال، فارغ البال اور دینے والا سوسائٹی بنائیں گے، اور ہم فخر کے ساتھ اس دنیا میں بھی زندگی گزاریں گے. اور جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو ہم اللہ سے کہہ سکیں گے کہ بار التعالیٰ ہم نے کام کیا اور تجھے دینے والا تھا، ہمیں دنیا کی خوشحالی بھی دے اور آخرت کی جنت سے بھی ہمیں سرفراز فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.